So write down a small working. Over here, company X has issued debt financing, comma, so it is a levered firm and company Y has issued only equity, comma, so it is an unlevered firm. Full stop. ना फ्रेंड्स, अभी मैं आपको है ना नेट इनकम अप्रोच का और एक एडिशनल अजम्पशन लिखवाऊंगा, एंड विद दैट अजम्पशन आई वांट यू टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ द कंपनी एक्स विदाउट एक्सेस. दैट आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट. वो अजम्पशन की वजह से कंक्लूजन क्या होगा वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, पर सबसे पहले मैं अजम्पशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं. चलो डाउन note additionally, NI approach has made an additional assumption that irrespective of proportion of debt financing in capital structure, comma, cost of equity in ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि will always remain same. Full stop. Now ये आप लोग नोट कंसीडर करो to complete the column of the company X without excess and put your answer in the chat box. Now let us understand that से X कंपनी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा. सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे EBIT से. EBIT is an amount of 6,000 माइनस इंटरेस्ट. X कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग कितना रेज किया है 18,000 रुपीज का. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. So 10% of 18,000 comes to 1,800. अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना हो जाएगा 4,200. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस वापस 4,200. देखो इंपॉर्टेंटली एनआई अप्रोच ने क्या अजम्पशन किया है फ्रेंड्स, उन्होंने अजम्पशन ऐसा किया है दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ proportion of the debt financing in capital structure, cost of equity will always remain same. तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल इक्विटी फाइनेंस के लिए दे रखा है वही का वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्स कंपनी के लिए लगेगा. सो हियर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गोइंग टू बी 15% itself. So value of the equity is 4,200 divided by 0.15.
दैट कम्स टू 28,000। फिर हमने आगे समझा हुआ है फ्रेंड्स दैट in absence of an information, book value itself is a market value for the debentures. So what will happen? It is 28,000 plus 18,000. Value of the firm will be 46,000. That is the way the value of the firm will be calculated for a company X. Lastly, we will make the computation of the weighted average cost of capital for company X. There are two methods by which we can do it. Method number one is conventional method, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले KD कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इनकम टैक्स का रेट कितना है? 0। सो वी अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग क्या होगा? 10%। कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of capital or overall cost of capital. There are two sources of finance, equity and debentures. Equity 28,000, debentures है 18,000. So 28,000 plus 18,000, that comes to 46,000. That is the overall employment of the funds in the business. 28,000 upon 46,000. वेट क्या आ जाएगा? 0.6087। So as far as the debt financing is concerned, उसका वेट होगा 0.6087, that is deducted from 1.3913 cost of capital. This is the amount, this is the weight, and this is the cost of capital. Cost of equity कितना है? 15% है, और cost of debenture कितना है? 10% है। So weight into cost, 6087 into 1515, तो क्या होगा? 9.13, 0.3913 into 10, that comes to 3.91. So 9.13 plus 3.91, so 13.04. That is the way we can compute the weighted average cost of capital. Okay, this is the weighted average or overall cost of capital. This can be computed by an alternative method also, जो हमने समझा था. It is NOPAT, net operating profit after taxes, that is EBIT into 1 minus T divided by the value of the firm. तो 6,000 रुपए into 1 minus tax rate 0 divided by 46,000, multiplying with 100 to get answer in percentage term. So 6,000 upon 46,000, that comes to 13.04%. This is the way the weighted average or overall cost of capital can be calculated. पहले आप लोग आंसर लिख लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनका कंक्लूजन क्या है. So this is the working for value of the firm and this is the working for the weighted average cost of capital. जो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड से कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. After writing this, try to complete the answer for company X with taxes and put your answer in the chat box. So friends, we understand for company X, we have to work out the answer similarly. EBIT is 6,000, interest is 1,800, तो EBT हो जाएगा 4,200, सिर्फ 50% का टैक्स रेट है, सो EAT हो जाएगा 2,100. अगेन वो बेसिक असम्पशन तो सेम ही रहेगा, दैट इज दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम 15%. सो इट इज 2,100 divided by 15%,
With that it comes to 14,000. Value of debt is equal to book value 18,000. So value of the firm is 32,000. So it is 14,000 plus 18,000. उसके ऊपर से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा. If at all you do with the method number 1, तो उसमें कैसे होगा वो समझ लेते हैं. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. क्यों? क्योंकि कोई भी प्रीमियम है, डिस्काउंट है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है. Rate of interest is 10% into 1 minus 0.50. That comes to 5%. उसके बाद calculation of weighted average cost of capital. Again, there are two sources of finance. It is equity financing and debt financing. Amount. इक्विटी फाइनेंसिंग का वैल्यू है 28,000. सॉरी, सपोज इट इज 14,000. हाँ, 14,000. दिस इज 14,000 और डेट फाइनेंसिंग का वैल्यू है 18,000. सो 14 प्लस 18 दैट कम्स टू टोटल 32,000. Weight or proportion, 14 divided by 3 to 0.4375. It is deducted from 1, so 0.5625. Cost of capital, इक्विटी का कॉस्ट है कितना 15% और डिबेंचर का कॉस्ट कितना है 5%. वेट इंटू कॉस्ट 0.4375 into 15, 6.5625. उसके बाद 5 into 0.5625, 2.8125. $9.375. This is the way weighted average or overall cost of capital can be calculated. Or otherwise, you can have again a shortcut method. It is NOPAT, that is EBIT into 1 minus T upon value of the firm. So it is 6,000 into 1 minus 0.50 divided by value of the firm. Value of the firm कितना है friends? Value of the firm is an amount of 14 plus 18, 32,000. So it is 3,000 divided by 32,000 into 100 for getting answer in percentage term. That comes to 9.375. This is the way the weighted average or overall cost of capital will be calculated. Now friends, the calculations are done. That's not very difficult. Now let us come to the important point of the conclusion. मैं आपको कंक्लूजन समझाऊं उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा. एक छोटा सा एग्जांपल. सपोज कि एक एबीसी है और दूसरा पीक्यूआर है. एबीसी जो है ना वो भी एक चाय वाला है और पीक्यूआर जो है वो भी एक चाय वाला है ना, दो चाय वाले हैं. तो वी नो दैट चाय बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. उसमें एक होता है पानी और दूसरा होता है दूध, मिल्क. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं सिर्फ मानने के लिए कि एबीसी जो है ना वो ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है और कम दूध का इस्तेमाल करता है.
जबकि पीक्यूआर का उल्टा है। पीक्यूआर क्या करता है, कम पानी और ज्यादा दूध, ऐसा ओ प्रपोर्शन रखता है। ऐसा मिक्सचर करके से वो लोग चाय बनाते हैं। ऐसा मान लेते हैं 2 मिनट के लिए दैट सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, सेल्स क्वांटिटी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। सपोज कि ऐसा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे कि दोनों में से किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर एबीसी ज्यादा पानी डालता है, उसकी वजह से क्या होगा दैट उनका कॉस्ट ऑफ मेकिंग टी वुड बी लेस, है ना, चाय बनाने का खर्चा कम होगा। अगर बाकी सब कुछ सेम रहता है देन इन दैट केस ऑफ कोर्स एबीसी का क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। This is what's the simple theory that we have, simple understanding that we have. Okay. Now, something like this takes place over here. देखो NI अप्रोच ने क्या अज्यूम कर दिया, NI अप्रोच ने ऐसा अज्यूम कर दिया that cost of equity will be same irrespective of the proportion of the debt financing in capital structure. ऐसा उन्होंने assumption कर दिया। We know that the debentures or equity उसमें हमेशा cost of equity is exceeding the cost of debenture. तो अगर cost of equity is always more than the cost of debenture, ऐसा एक सिचुएशन हमेशा होता है। एंड व्हेन यू इंक्रीज द डेट फाइनेंसिंग प्रपोर्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ द फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि इक्विटी और डिबेंचर्स, फॉर एग्जांपल मैं पूरा का पूरा इक्विटी रखता हूं और डेट रखता ही नहीं हूं। कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20% एंड 10%, मैं थोड़ा अज्यूम फिगर्स ले रहा हूं, तो वेटेड एवरेज क्या हो जाएगा 20 इंटू 120, 0 इंटू 10 इज 0, तो ओवरऑल 20 हो जाएगा। सपोज की ये है 90 और ये है 10, ठीक है ना, दिस इज द वेट, दिस इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट इंटू वेट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 18 और ये 1, ये 19 हो जाएगा। सपोज की वेट में वापस चेंज करता हूं 50-15, तो देखो वापस कॉस्ट इंटू वेट, कॉस्ट 20 इंटू 5 यानी 10, 10 इंटू 5 यानी 5, ओवरऑल कितना हो जाएगा 15। यानी जैसे जैसे proportion of the debt financing बढ़ता जाएगा, proportion of the lower cost of the funds in the capital structure will increase and it will have an impact of reducing the weighted average cost of capital, ऐसा हम लोग समझते हैं। This is what we understand is the kind of effect that we have of the assumption that they have made. तो उनका conclusion क्या, उनका conclusion simple है that say introduce the debt financing so far possible in order to reduce the weighted average cost of capital. And we further know that weighted average cost of capital is EBIT into 1 minus T upon value of the firm. So value of the firm is EBIT into 1 minus T divided by weighted average cost of capital. यानी क्या होगा, जैसे जैसे हमारा प्रोपोर्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा और वैसे वैसे हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ता जाएगा। तो ये थियरी सिंपल है, यू इंट्रोड्यूस डेट फाइनेंसिंग सो फार पॉसिबल जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म बढ़ेगा और उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, इसका ऐसा मानना है। Now friends, let us see the table that say we have prepared. In that say we can see something like this कि X कंपनी जो लीवर्ड है उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो कम है ना, कितना है 13.04 और वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। अच्छा टैक्स है तभी भी देखो इन दैट केस इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज
9.375 जो कंपेरेटिवली कम है, हमने कंप्यूट किया है नीचे, और उसका वैल्यू ज्यादा है। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि लीवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा होगा और उनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। चलो राइट डाउन हेडिंग कंक्लूजन। In that write down first point, as per NI approach, comma, the company should introduce debt financing so far possible. Full stop. Second point, as assumption is made that KE, cost of equity, will remain same irrespective of debt financing in capital structure, comma, so definitely WACC will fall with increase in debt financing, and value of the firm will increase. Third point, always KE is more than KD, comma, so if KE remains same, comma, WACC will decrease with increase in debt financing. Full stop. Now you may have a question like this, that sir, हमने क्वेश्चन आगे ऐसा किया जिसमें समझा दैट से जैसे जैसे डेट फाइनेंसिंग बढ़ता है या जिस फर्म का डेट फाइनेंसिंग ज्यादा है उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, तभी आपने ऐसा समझाया दैट से द विद द मोर डेट फाइनेंसिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स का रिस्क ज्यादा होता है, विद मोर डेट फाइनेंसिंग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज ज्यादा है। देन इन दैट केस सर व्हाई ओवर हियर से वी लर्न लाइक दिस, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू मे हैव, गिविंग रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। भाई देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि सपोज कि YouTube पे मैंने सर्च किया क्या, हाउ टू पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जब मैं ऐसा सर्च करता हूँ ना, देन इन दैट केस ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों का एडवाइस कुछ कन्वेंशनल या कुछ हमको डाइजेस्ट हो, ऐसा ही हो सकता है। कुछ का एडवाइस कुछ अलग भी हो सकता है, भाई उसने उस हिसाब से पास किया है या उसका सोचना कुछ अलग है, इसकी वजह से उसका एडवाइस कुछ अलग भी हो सकता है। सो व्हेन आई लिसन टू दैट वीडियो,
तो वो वीडियो में वो जो बोलता है वो मुझे सुनना है। सिमिलरली ओवर हियर एनआई अप्रोच में जो उनका असम्पशन है उस हिसाब से थियरी हमको लर्न करना है। We don't have a choice but to understand the theory that said they have explained based on the assumption that they have made. We can say at the most, अगर हमको ऐसा पूछा जाए that say what is the limitation of the NI approach, तो हम लोग ये limitation लिख सकते हैं that it wrongly assumes that the cost of equity will remain same irrespective of the proportion of the debt financing capital structure. ऐसा लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। Let us understand the diagram. On x-axis I am taking debt financing in capital structure. And on y-axis I am taking cost of capital. मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके देता हूं। ये लाइन है कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का, और ये लाइन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग का। आप मुझे कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का लाइन ड्रॉ करके यू जस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लाइन ड्रॉ करके आप लोग लाइक रुकिए, कौन सा लाइन बनाने का बाकी रखा है मैंने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो आप लोग बनाइए, फिर मैं बना के देता हूं। So let us see that say how to do answer. Friends, over here importantly, when there is no debt financing at that time, K itself is the weighted average cost of capital, ऐसा हम लोग समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग डेट फाइनेंसिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। So this is the line of the weighted average cost of capital. We understand that हमारा weighted average cost of capital जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग की लाइन को टच नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे टच नहीं कर सकता है। Why? Because we understand that you cannot have 100% debt financing. That is the reason say we understand कि हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हो सके उतना नीचे जाएगा विद द मैक्सिमम डेट फाइनेंसिंग दैट यू रेज। ऐसा करके ये डायग्राम है, एंड ऑफ कोर्स दिस डायग्राम इज फॉर नेट इनकम अप्रोच जो भी हम लोग लर्न कर रहे हैं। चलो प्लीज रिटर्न दिस, ड्रॉ द डायग्राम। जो छोटा सा एक समरी एनआई अप्रोच का, सबसे पहले हम लोग ऐसा समझते हैं कि सर्टेन कॉमन असम्पशंस आर देयर। कॉमन असम्पशंस क्या है? ओनली टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 1, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट, ऑल सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस हैव अ परपेचुइटी एंड सो ऑन। ये सारे बेसिक असम्पशंस हैं। उसके अलावा एक एडिशनल असम्पशन यहाँ पे किया गया है, पर वो असम्पशन मैंने लिखवाया उसके पहले मैंने आपसे करवाया अनलीवर्ड फॉर्म का कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी है अनलीवर्ड फॉर्म का वैल्यूएशन हमेशा सेम रहेगा। फिर मैंने आपको समझाया that there is an additional assumption which has been made that the cost of equity will remain same irrespective of the proportion of the debt finance. ये assumption मैंने लिखवाया और आपको ये कैलकुलेशन करवा दिया। फिर मैंने उसका कंक्लूजन समझाया कि उनका कंक्लूजन ऐसा है कि जैसे जैसे डेट फाइनेंसिंग बढ़ेगा वैसे वैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, जैसे जैसे डेट फाइनेंसिंग बढ़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। ऐसा मैंने उसका कंक्लूजन सिखाया। एंड lastly we have drawn this diagram. This is the way we have the overall NI approach set to be done. उसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और उसका थियरी भी पूछ सकते हैं। थियरी पूछेंगे तो आपको assumptions लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में रीजन भी लिखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम अज्यूम किया है, और लास्ट में से वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द डायग्राम। ऐसा पूरा का पूरा आंसर हमको करना पड़ेगा।